FM 95 रेडियो 1 से मेरा नाम आरजे देवांग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि शायद हर एक इंसान को चार में से हर चौथे में से एक इंसान को जो है वो स्ट्रोक का रिस्क रहता है और बिलियंस ऑफ पीपल रोज पूरे विश्व में जो है उनको स्ट्रोक आता है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और हमारे साथ एक स्पेशल डॉक्टर जिनको आप देख रहे हो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो है डॉक्टर संदीप मोड, जो है सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जन केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद से। कैसे हो सर जी? नमस्कार, बस फाइन सर आज आपको हमने जी सर हमने आपको इनवाइट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रोक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। जैसे बताया कि काफी गंभीर ये मामला है, तो बताइए कि इसके बारे में अवेयरनेस कितनी जरूरी है लोगों में? नहीं, स्ट्रोक की अवेयरनेस हमें इसलिए जरूरी है कि जैसे आज ऐसा रहता है कि हार्ट अटैक, तो मतलब एवरी पर्सन इज अवेयर अबाउट द हार्ट प्रॉब्लम। लाइक इफ अटैक देयर इज अ पेन इन द चेस्ट, people are going directly to the physicians or concerned doctors and they are more concerned. Sometimes they are from their side के सर ऐसा लगे तो एंजियोग्राफी करके जरा चेक कर लेते हैं। तो ये चीज रहती है अपने ब्रेन में, मींस जो स्ट्रोक आते हैं और जिसमें खून कम पहुंचता है वो जो स्ट्रोक के जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। जी, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक और वो कैसे ये पूरा वो कितना गंभीर ये हो सकता है। हाँ जी, सिंपली हम ब्रीफ करने जाए तो ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। राइट, इट नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड, राइट, एंड अकॉर्डिंग blood supply, it needs a constant nutrition, and along with oxygen also, which occurs through blood vessels. So either if there is a blood supply cutting, like in a way of like some hemorrhage, or if blood supply is not reaching to the blood vessels, so brain cells will not function properly, and according to part of the brain, it will affect to our body, controlling our human body. So it could be due to the two. Firstly, the reason is that a sudden blockage into the blood vessels, into the brain, that is commonly called as a ischemic stroke. Okay. And another, when there is a bursting of the blood vessel because of some high blood, some reasons. So there is in the brain there is some brain hemorrhage. So out of these two, like hemorrhagic stroke and ischemic stroke, that ischemic stroke is around 85 to 87% common among whole number of strokes. Right. सर जानना मैं भी ये चाहूंगा, जो हमें देख रहे हैं वो भी चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है इंसान को कि भाई वो स्ट्रोक का शिकार हुआ है? The important thing is that कि the brain symptoms. So nowadays we are telling to the patients, or in the awareness systems, what we are doing, we are telling that it's like a heart attack. So we have to understand it's a brain attack. Like attack something like acute. Acute means something is suddenly. So WHO, like World Stroke Organization जो है जी, mnemonics, that is called FAST, fast. So every person should remember this FAST. In that, F stands for the face. Means if a person who is standing with us or who is talking to us, and if there is a sudden problem into face, like there is a drooping of the face, if there is into the problem related to face drooping, so F stands for, and this is for the sudden. I'm talking about brain stroke, brain attack. So attack means sudden. Then again there is another thing is A for the arm. If we are walking, and if some person has a sudden problem into this arm is not functioning properly, his upper limb, like his hand or leg is not properly working as compared to his right side. It's some either of two. One is weak, so that is stands for the A. If there is a sudden weakness into any arm, that symptoms is also maybe because of the ischemic stroke. Then another is of the sudden speech difficulties. If I'm talking and if suddenly somebody is recognizing my speech is not proper, some difficulty in speech. So S stands for the speech. And then T, if you find these FAS type of symptoms, then time is a brain. We have to reach to the hospital, very nearby hospital, very immediately, and we should work up for the if that person doesn't have a ischemic stroke. Another symptoms is like sometimes severe headache, loss of the balance, blurred vision, tingling sensations, tingling into the ear, sometimes imbalance. That symptoms also can be because of the stroke. Right. बहुत ही अच्छी आपने information. Symptoms. जी
हाँ, तो ये सिम्टम्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट, तो आइडेंटिफाई जल्दी होता है और उसमें ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं हम बचा सकते हैं बचा और सकते उसमें हैं। ट्रीटमेंट से फायदा मिल सकता है। मैं यही पूछने वाला था कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, स्ट्रोक को। एग्जैक्टली। सो हाँ, इनिशियली मैंने शुरुआत में ही बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जी। कि ब्रेन अटैक एंड हार्ट अटैक, लाइक बोथ द चीज जो ऐसी है कि जिसमें खून की नसों में प्रॉब्लम होता है, मतलब खून कम पहुंचता है, जी राइट। ज्यादातर जो इस्केमिक स्ट्रोक्स के बारे में हम आज डिस्कस जी कर रहे हैं, जी इस्केमिक स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए है तो हमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए। आजकल क्या रहता है कि हम लोगों की जो हैबिट है, लाइक ईटिंग हैबिट्स, सो वी शुड ईट सम हेल्थी डाइट्स, राइट बैलेंस डाइट लेना चाहिए। राइट। इफ वी या पेशेंट्स हैव लाइक जंक फूड से प्रॉब्लम डायबिटीज, होता है क्या? सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर ज्यादा जंक फूड और यस बाहर का खाना एग्जैक्टली, है। जंक फूड से प्रॉब्लम होता है बिकॉज इट इज विद नॉट अ प्रॉपर्ली हेल्थी डाइट्स। राइट। उस ऐसा रहता है कि ऑयल्स आर मोर, सो फैट्स आर मोर एंड दिस हमारे कैन जैसे कॉज। लोगों को बहुत जानने की जरूरत है ये। हाँ नहीं, सही बात है, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को ब्लड प्रेशर रहता है हम्म। तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। जी डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ज्यादातर क्या होता है कि इफ वी आर आस्किंग टू द पेशेंट कि आपको ब्लड प्रेशर है, हाँ तो काफी लोग ऐसा बोलते नहीं सर ब्लड प्रेशर था। हाँ ब्लड प्रेशर ऐसी बात नहीं होती है। हाँ। ब्लड प्रेशर होता है, उसका मतलब ऐसा है कि सपोज 4 साल पहले कोई डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर की दवाई चालू करवाई है, जी। तो उसमें ऐसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। वो ओके। जो ब्लड, उसको कंट्रोल करने की दवाई लेनी पड़ती है, राइट। फिजिशियन चेकअप करना पड़ता है। ट्रू। इफ दैट चेकअप के अंदर डॉक्टर को लगता है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को एडजस्ट करते हैं, बट ब्लड राइट। प्रेशर नहीं आती है। सो ब्लड हाँ। प्रेशर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सेम चीज इसके लिए आती है, डायबिटीज का डाइट से कंट्रोल करो, मेडिसिन से कंट्रोल करो, राइट। रेगुलर करो, वो हम्म। जरूरी है। दूसरा जो रोल रहता है वो कोलेस्ट्रॉल का है। तो जो राइट। कोलेस्ट्रॉल जिस है, ऐसे फूड कम खाने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े उसके लिए कुछ मेडिसिन रहते हैं, वो मेडिसिन जो आपके फिजिशियन डॉक्टर्स बताते हैं राइट। वो मेडिसिन लेनी चाहिए। जी अल्कोहल उसको कम करना चाहिए। जी। स्मोकिंग, हम्म। ideally a person should avoid smoking or even I can say stop smoking. ट्रू। And important is to avoid the stress. बेटर है कि कुछ योगा वगैरह कीजिए, ये सब जी भी अपने को हेल्प करता है। जी। एंड पर्सन शुड बी फिजिकली एक्टिव। एटलीस्ट ऐसा रहता है कि पर डे अराउंड 20 to 30 मिनट्स का कुछ फिजिकल एक्सरसाइज इज मोस्ट करनी इंपॉर्टेंट फॉर चाहिए। एनी ह्यूमन पर्सन। जी जी जी, क्या बात है सर, ये तो बात सो हो गई दीज आर कि द हम। जी। पॉइंट्स दैट वी कैन प्रमोट प्रिवेंट, मतलब हम ट्राई यस, करके उस प्रिवेंट कर ट्राई सकते कर हैं हम। सर ये तो जी। बात हो गई कि प्रिवेंशन की, ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एक ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर स्ट्रोक होता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। राइट, तो हम जो अभी आज डिस्कस कर रहे हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक मींस खून कम पहुंचना, वो वाले स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। जी और जो जी हमने वगैरह बताए, तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे उसमें ऐसा है कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक। सो जैसे वो FAST वाले प्रॉब्लम के साथ, लाइक किसी को जी फेस में कुछ प्रॉब्लम, आर्म में वीकनेस हुई, जी। स्पीच में डिफिकल्टीज हुई, तो दिस टाइप ऑफ पेशेंट शुड रीच टू द हॉस्पिटल वेरी इमीडिएटली। राइट। इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि टाइम इज द ब्रेन। आफ्टर फ्यू आवर्स or after maybe if we waste the 2 days and if we'll reach later on कि already ओके। मतलब हाँ पैरालिसिस हो, हाँ। तो उसके बाद में वो कुछ सिंपल वाली दवाइयाँ चलती है जो खून पतला करने की दवाइयाँ है, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से। बट जो अभी डिस्कस करने चाहेगी उसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट नाउअडेज अवेलेबल, उसमें one is that if patient reaches to the time and if patient यस, reaches दैट इज ट्रू। 10 hours, that is called a 4.5 hours of the onset. And ओके। if patient reaches to the hospital and that type of जो stroke ready centers type of hospitals which are ready for this type of patients, जी and they go for the MRI or some CT scan, and if they evaluate that there is a major stroke, so they can give a one injection into the intravenous में injection देते हैं जी जिसको हम thrombolysis injection बोलते जी। हैं। तो इसकी वजह से अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स में जिसमें बहुत बड़ी नस, जो खून की नस ब्लॉकेज नहीं है, वो खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। राइट। सो 4.5 घंटे में, मतलब 4.5 आवर्स में इफ पेशेंट इज रीचेस टू द जी हॉस्पिटल, सो फॉर दिस ट्रीटमेंट। एंड along with that if sometimes because of the some reason if we cannot give this thrombolysis treatment, the patient is not reaches beyond 4.5 hours,
So till the previously it was like that, before 2 years it was like that. If patient reaches to the 6 to 8 hours period, then we can offer in a, like some intra-arterial treatment that is called a thrombectomy or some thromboaspiration treatment. Right. What is that? Just if you regarding this, because this is most important. People are not aware about that. We Right. want to the public for that. And in a recent studies, some scientific studies came, if patients matching some different criteria, and if patient reaching late after even 8 hours until 16 to 24 hours, but if it's specific criteria, then we can offer this angiography treatment. Right. Intra-arterial thrombectomy is a treatment like if patient has a heart attack and doctor is doing angiography for the heart, same way we intervention doctors for the neuro, we are doing this specific angiography of the brain by the catheter method. We put at the groin area, and from that we insert a catheter. We'll check after that injection or still there is a the blood vessel is blocked at the neck or inside the brain. So we have special devices that is called a thrombectomy retriever devices, and another device is that is called aspiration catheter. From that we have to reach these devices till the occluded vessels or the blocked vessels, and then we'll catch that thrombus, that's a clot which has been inside that blood vessel. We'll catch that thrombus, and then we'll retrieve that complete thrombus through that angiography method. And the success ratio for this type of treatment is very high. If patient reaches to time, if patient is matching all the criteria, if we can offer that treatment to the patients. So in around 65 to 70% patients, we can open that vessels, and that stroke उसको हम आगे बढ़ने से बचा सकते हैं जी. जो पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट होके आते हैं उसमें भी फायदा होता है. So we have to offer. So टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मेरा सवाल यही था कि टाइम का डिस्कशन, टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. कोविड-19 अभी सिचुएशन ये चल रही है, तो कोविड-19 के बारे में जस्ट बताना चाहता हूँ. तो इसलिए है कि स्ट्रोक, why the stroke is emergency? Because every second count. In a brain, we can say time is a brain. Right. What happens if the blood supply is not reaching to our brain cells, that is called the neurons? In every minute, if the blood supply to the brain will not be there, then in every minute around 19 lakh brain cells can die. Okay. And because of these ischemic strokes, right, out of 10 people remain disabled at 3 months if not treated properly or not treated time. Oh my God. Okay. So reaching to the comprehensive stroke centers type of hospitals, stroke ready hospital is most important because of this, because of the golden hours. Importance of golden hours is in this. राइट. कोविड-19 के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो मैंने ऐसा सुना है, ऐसा माना जाता है कि वो पेशेंट्स को ज्यादा रिस्क रहता है स्ट्रोक का. तो इज इट ट्रू, और क्या होता है ये पूरा? क्या नहीं, एग्जैक्टली जैसे काफी सारे लाइक लिटरेचर लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है कि सब थ्रोम्बोसिस होते हैं, जो बोलते हैं कि लंग में भी जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी थ्रोम्बोसिस की वजह से लंग्स प्रॉब्लम बढ़ते हैं. तो सेम वे जो थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से क्या रहता है कि ब्लड सप्लाई मिलना कम होता है. तो उसकी वजह से जो ये इस्केमिक रहते हैं, तो कोविड-19 सिनेरियो में हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोविड होने के मींस आफ्टर फ्यू डेज to some few months, there is a chance, or maybe for a few weeks, there is a higher chances of ischemic strokes into the patient. Right. एक JAMA न्यूरोलॉजी JAMA न्यूरोलॉजी जर्नल है, अंदर जुलाई 2020 में भी एक स्टडीज आया है. If we compare with the post influenza virus, like COVID is also virus infection and influenza is also virus infection. Right. If we compare to like influenza virus के बाद में या कोविड के बाद में, तो कोविड के बाद में स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स है वो एटलीस्ट 7.6 टाइम मोर देखने को मिले. अच्छा. कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा वायरस. अनदर स्टडीज जो पब्लिक हुई है लैंसेट जर्नल के, लैंसेट न्यूरोलॉजी के, जो न्यूरोलॉजी फील्ड में हमारे सबसे रिसर्च के लिए बहुत बेस्ट जर्नल मानी जाती है, उसमें अगस्त 2020 में रिसर्च आया है कि अराउंड 0.5% लोगों को आफ्टर कोविड इन अ फ्यू वीक्स स्ट्रोक होता. राइट. ओके. So कोविड के सिनेरियो में हम अभी बात कर रहे हैं, अभी चलने वाला है, कितने टाइम चलेगा nobody knows, so we have to prevent ourselves from ध्यान रखना जरूरी है. social distancing,
बट सेम टाइम में ये ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सतर्क रहना है, और ऐसे सिम्टम्स इवन आप रिकवर हो गए, घर गए, उसके बाद भी if someone finds this type of symptoms, तो this type of patients और this type of symptoms के साथ वाले patients को immediately हॉस्पिटल में वापस जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात काफी सारे है। जिसमें ये स्ट्रोक के रिस्क ज्यादा रहते हैं ऐसे। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स बताई जो हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत ही ज्यादा जो है आगे वाले टाइम में खुद का ख्याल रखने के लिए काफी उनको मदद मिलेगी। हमारे साथ केडी हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप मोड जो वहाँ पे इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जन है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, और आज जो आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा अबाउट स्ट्रोक, जो काफी गंभीर है और जानना भी बहुत जरूरी था। हाँ, अभी लास्ट लाइन के लिए मेरा संदेश है, सबसे इम्पोर्टेंट FAST जो हमने पहले भी बताया, अभी वापस रिपीट करता हूँ। F फॉर द फेस, जो फेस का कुछ ग्रुपिंग होता है। A फॉर द आर्म, राइट के कंपेयर में लेफ्ट वाला आर्म बराबर काम नहीं कर रहा है। स्पीच बोलने में कुछ डिफिकल्टीज आती है, तो टाइम अपना इम्पोर्टेंट है। प्रॉपरली टाइम के हिसाब से इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, कि जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर्स रहते हैं, जिसमें रूटीन ट्रीटमेंट के अलावा भी आपको स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस और इवन उससे भी हायर के जहां पर हाई एंड कैथलैब्स वगैरह रहते हैं, इसमें नस मैंने ट्रीटमेंट बताया कि जिसको इंट्राआर्टेरियल थ्रोम्बेक्टोमी और इंट्राआर्टेरियल एस्पिरेशन ट्रीटमेंट कहते हैं, वो भी ऑफर किए जा सकते हैं। टाइम एक बार चला जाता है, 24 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट के लिए स्कोप नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है, सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करो कि ये सिम्टम्स, तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे स्ट्रोक की संभावना है, तुरंत हॉस्पिटल में, बहुत जरूरी है कि हमें हॉस्पिटल में पहुंचना है, डॉक्टर्स उनके हिसाब से डिस्कस करके ये सब करेंगे। और दूसरी बात है कि उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना, डायबिटीज का कंट्रोल रखना, करना, रेगुलरली कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो उसकी मेडिसिन लेनी, आपका डाइट कंट्रोल करना, स्ट्रेस कम लेने के लिए ट्राई करना, अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे व्यसन है तो उसको भी बंद करना, ये सब। तो हमारे पास मरीज नहीं आए, वही बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मरीज को या सबको ये प्रिवेंट करने के लिए ट्राई करने दें। नमस्कार, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी इसके लिए, थैंक यू।